گوادر میں مشتعل ہجوم کا سیکیورٹی فورسز پر دھاوا، حملے میں سپاہی شبیر بلوچ شہید، افسر سمیت 16 اہلکار زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز پر حملہ نام نہاد بلوچ راجی مچی کی آڑ میں کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے سویلینز کی ہلاکتوں سے بچنے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ہجوم کی پرتشدد کارروائیاں ناقابل قبول ہیں، ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر غیر قانونی پرتشدد مارچ کے لیے ہمدردی اور حمایت حاصل کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا۔ شہری پرسکون اور پرامن رہیں، پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں، امن و امان برقرار رکھنے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی گوادر میں سیکیورٹی فورسز پر حملے کی مذمت۔ کیا لوگوں کو جتھوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ جتھے آ کے یہ اسمبلی چلانا شروع کر دیں، جتھے آ کے حکومت چلانا شروع کر دیں؟ جتھوں کی اور یہ وائلنٹ لوگوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ سیکیورٹی فورسز کو اور عوام کو آمنے سامنے لانے والا کون ہے؟ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ کے ساتھ حکومت کا ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے حضور، اس ریٹن ایگریمنٹ میں انہوں نے یہ مانا ہے، تسلیم کیا ہے کہ رائٹ ٹو اسمبل۔ یہ پرامن لوگ FC کے پر فائرنگ کیسے کر لیتے؟ یہ پرامن لوگوں کی فائرنگ سے لانس نائک شبیر جو CP کے رہنے والے تھے ہو گئے، ایک لیفٹیننٹ نے اپنی آنکھ ضائع کر دی۔ یہ کہاں سے پرامن ہے؟ جتھوں کو حکومت ہائی ٹریک کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، بلوچستان میں امن کا قیام یقینی بنایا جائے گا۔ سرفراز بگٹی کا واضح پیغام، پاکستان توڑنے کی عالمی سازش کرنے والوں کو جانتے ہیں، ایک مخصوص ٹولہ ریاست اور عوام کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مہرنگ بلوچ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے، یہ میڈیا پر کچھ ہم سے کچھ اور کہتے ہیں۔ اپوزیشن صورتحال پر تیل نہ چھڑکے، کسی کو لاشوں پر سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں گھن کرج، کہا یہ پرامن لوگ ہیں تو سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کیوں کرتے ہیں؟ بلوچستان میں جب کوئی پنجابی قتل ہوتا ہے تو احتجاج کیوں نہیں کرتی؟ قائن لوگوں کی حفاظت کی ضمانت نہیں دیتا؟ سرفراز بگٹی نے بلوچ یکجہتی کونسل کو مذاکرات کی دعوت بھی دے دی۔ ملک میں قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز سرگرم، خیبر پختونخوا میں 3 مختلف آپریشنز میں 5 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق ضلع محمد میں کارروائی کے دوران 3 دہشت گردوں کو مارا گیا، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ پولیس کانسٹیبل ابرار حسین بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان آپریشن میں خارجی صفت اللہ عرف ملا منصور سمیت 2 دہشت گرد مارے گئے۔ دوسری جانب فتنہ الخوارج کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ، خارجی نور ولی محسود اور غٹ حاجی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو قتل کی دھمکی دینے پر تحریک لبیک کا نائب امیر ظہیر الحسن شاہ گرفتار، تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ملزم ظہیر الحسن کو اوکاڑا سے پکڑا گیا، اوکاڑا میں چھپا ہوا تھا۔ ظہیر الحسن کے خلاف چیف جسٹس کو دھمکی دینے کا مقدمہ لاہور میں درج کیا گیا۔ FIR میں انسداد دہشت گردی ایکٹ، مذہبی منافرت، فساد پھیلانے کی دفعات شامل ہیں۔ مقدمے میں TLP کے 1500 کارکن بھی نامزد۔ سوشل میڈیا پہ عوام کو قتل پہ اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک انتہا پسندانہ جو ہے پوسٹ جو ہے سوشل میڈیا پہ لگائی جا رہی ہے۔ یہ سارا کچھ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ قاضی صاحب کو بڑی دیر سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کئی سالوں سے مختلف ہیلے بہانوں سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ریاست اس بات کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دی جائے گی اور قانون اپنی پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آئے گا۔ فل فورس کے ساتھ جو ہے اس قسم کے غیر قانونی اقدامات اور قتل کی دھمکیاں اور اس قسم کے فتووں کا جواب دے گی۔ کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو ذاتی حیثیت میں قتل کے فتوے جاری کرے۔ ریاست میں سزا، جزا، موت، زندگی، اس کا فیصلہ صرف عدالت کر سکتی ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس کو قتل کی دھمکیوں پر حکومت کا نوٹس، سخت کارروائی کا اعلان۔ ریاست کسی کو قتل کے فتوے جاری کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ نفرت کے بیج بونے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیں گے، وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں چیف جسٹس کو دھمکی دینا آئین سے کھلی بغاوت ہے۔
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया कि चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान पर रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि चीफ जस्टिस के कत्ल के फतवे देने के पीछे सियासी मकासद हैं। नफरत बदअमनी फैलाने वालों के आगे हुकूमत दीवार बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल, तालीम सेहत और दीगर शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज से कहा कि ख़वातीन और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला से चाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात। मरीम नवाज से कहा कि बच्चों की सेहत और तंदरुस्ती सबसे अहम है, हर बच्चे तक बेहतरीन इलाज की रसाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मसनूई महंगाई के खात्मे के लिए मुतहरिक सप्लाई चेन मैकेनिज़्म को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इक़दाम का हुक्म। मरीम नवाज से कहा कि अवाम पर महंगाई का बेजा बोझ डालने की इजाज़त नहीं देंगे। पंजाब की 12 करोड़ आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, हेल्थ कार्ड के जरिए इलाज की हद 15 लाख तक करने की तजवीज़ देगी। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर, फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC कर दी। पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी रेटिंग अपग्रेड कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF मुआहिदे से पाकिस्तान में बैरूनी फंडिंग रसाई में बेहतरी आएगी। नए कर्ज प्रोग्राम के तहत टैक्स और तवानाई शोबे में इस्लाहात करना होंगी। वज़ीर आज़म का फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने पर खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ होना दुरुस्त माशी पॉलिसी का आलमी एतराफ़ है। मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर दिन रात काम कर रहे हैं, समरात आवाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। पॉलिसी रेट जो इस वक्त जो 20.5% था वो कम होके 19.5% हो गया। तो और ये अगली मॉनेटरी पॉलिसी तक रहेगा। उसके बाद सितंबर में फिर दोबारा से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, तो उसमें फिर दोबारा से जो है वो अगली डेवलपमेंट्स जो है रिव्यू की जाएंगी और उसकी लाइट में फर्दर डिसीजन लिया जाएगा। अब इस वक्त जो पॉलिसी रेट को 20.5% से कम करके 19.5% कर दिया और ये कल से जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 20.50% से कम होकर 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा महंगाई में बतदरीज कमी और मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.60% हो गई। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। करंट अकाउंट खसारा $4 अरब से कम रहेगा। अगले साल महंगाई की शरह 11.5 से 13.5% रहेगी। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 12.5% पर आ गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। कोशिश है आलमी मालियाती इदारे के साथ ये आखिरी प्रोग्राम हो। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है तो दूसरी तरफ ख़वातीन के काफ़िले निकलना शुरू हुए, दोनों ने रुकावटें भी डाली हैं। हमने उनको अपने सारे मुतालिबात उनके हवाले किए हैं। बिजली के जो बिल है ये बम बनकर गिरते हैं। यूथ खुद पाकिस्तान से मायूस होने लगे। इससे बढ़कर कोई तबाही नहीं हो सकती। अगर हमने इसको चैनलाइज नहीं किया तो फिर कोई बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। रावलपिंडी में एक तारीखी जलसे आम में इस धरने को आपने तब्दील कर दिया है। आपको सलाम अर्ज करता हूँ। जमात इस्लामी की नई हिकमत अमली। हाफिज मेमूर रहमान का लाहौर, कराची और पेशावर में गवर्नर हाउसेस के बाहर एहतजाज का ऐलान। धरने में बिजली के होशरुबा बिल्स जमा न कराने का इंदिया भी दे दिया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा हुकूमत के पास हमारे मुतालबात मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जितनी देर होगी हुक्मरानों को उतना ही नुकसान होगा। बिजली के जालिमाना नाजायज मुआहिदों के पैसे आवाम क्यों दें? कैपेसिटी चार्जेस किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट, माजी में होने वाले मुआहिदे खत्म किए जाएं। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स और महंगी बिजली पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला।
न्यू न्यूज आवाम को फौरी रिलीफ देने का फॉर्मूला सामने लिया है। कैपेसिटी पेमेंट्स में सरकारी पावर प्लांट्स का 50% हिस्सा है। पावर प्लांट्स के मुकम्मल फोरेंसिक ऑडिट तक सार्फिन को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 50% यानी 9 रुपए फी यूनिट रिलीफ दिया जा सकता है। टैक्सेस और ड्यूटीज में भी फौरी 50% तक कमी से बिजली बिल्स में बड़ी कमी मुमकिन है। कैपेसिटी चार्जेस और टैक्सेस में 50% कमी से 200 यूनिट वाले सार्फिन को 14 रुपए 6 पैसे फी यूनिट तक का फौरी रिलीफ मिल सकता है। झेहलम की तहसील दीना में वापडा वालों का अनोखा कारनामा। मसूद को 18,42,000 रुपए का बिजली का बिल भेज दिया। गरीब शख्स हूँ, इतना बिल कहाँ से जमा कराऊं? मुतासरा शहरी की दुहाई। दूसरी जानिब गुजरावाला में बिजली बिल के बायस खुदकुशी करने वाली रसिया बीबी की लाश मिल गई। रेस्क्यू और वासा एहलकारों ने 20 घंटे ऑपरेशन के बाद लाश बाहर निकाल ली। मॉनसून जोबन पर जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी शहर तालाब में तब्दील। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी। कैंट के इलाके टंच भाटा डूब गया। पानी घरों में दाखिल। वेस्टरिज में करंट लगने से एक शहरी जाम बहक। नाला लई में पानी की सतह 12.5 फीट तक बुलंद हो गई। पंजाब के बेशतर शहरों में बादलों की इनिंग्स जारी। सवाबी, डुडियाल, पिंडी घेब, अटक, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, आजाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। कराची में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। शारा फैसल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम निखर गया। आइंदा 3 रोज में मुख्तलिफ शहरों में 200 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सूबाई असम्बलियों में PTI अराकीन की तादाद बढ़ गई। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 93 अराकीन को तहरीक इंसाफ का मेंबर तस्लीम कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 58, पंजाब से 29 और सिंध असम्बली से 6 अरकान PTI में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का 5 अगस्त को सवाबी में जलसे का ऐलान। भूख हड़ताल कैंप में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की लार्जर पार्टी बन जाएगी। पार्लियामेंट की जजेस कंडक्ट से मुतालिक हर करारदाद की मुखालिफत करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत से जो भी बात होगी वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगी। बानी PTI का मुतालबा है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स और दीगर जगहों की CCTV सामने लाई जाए। PTI को बातचीत की पेशकश करने और नाज नखरे उठाने का जमाना गुजर चुका। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि PTI जब मुज़ाकरात के लिए आएगी तब देखेंगे। हमारे दरवाजे पहले भी खुले थे, अब भी खुले हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद भी ख्वाब देख रही है, कारकुनों को भी दिखा रही है। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 10 रोज की तौसी। अदालत का मुल्जिमान को तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ 8 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब लाहौर ATC ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कोर्ट लखपत जेल में 9 मई के मुकदमे के ओपन ट्रायल की इजाजत दे दी।